सो हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल आप लोगों के? कैसन बा? मजा मा? उम्मीद है आप लोग की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप लोग अपनी अपनी फील्ड में सर मचा रहे होंगे। और हम लोग सर आज एक बहुत इंपॉर्टेंट सेशन लेकर के आ गए हैं, जो आप समझ ही रहे हैं सर, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले अपकमिंग जेई मेन तो एडवांस से रिलेटेड। तो आज हम लोग सर पूरा वन वन साठ पर रिवीजन करेंगे। और आपको मैं बता दूं कि अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने जीवन का सबसे बड़ा गुनाह कर रहे हैं। सब्सक्राइब करिए, बहुत लोग सपोर्ट दिखा रहे हैं, प्यार दिखा रहे हैं, आप भी दिखाइए, ताकि मैं आप लोगों के लिए ज़्यादा से ज़्यादा बहुत ही उपयोगी, बहुत ही मतलब जिससे आप लोग बहुत सारी चीज़ें, अच्छी चीज़ें ले सकते हैं, उन चीज़ों को लेकर के आऊँगा। आप लोग करेंगे, सपोर्ट दिखाएंगे, बहुत सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कहीं नहीं हुई हैं यूट्यूब पे। अगर आप लोग सपोर्ट दिखाते हैं तो होंगी ये सारी चीज़ें ना। बाकी मैं अपना एफर्ट पूरा डाल रहा हूँ, पूरा अपना प्रयास करूँगा, जो मैं मेरे से हो सकता है मैं कर रहा हूँ। और बाकी अगर बात करता हूँ सर, तो इस सेशन का ये पूरा थ्योरी सेशन है, पूरा रिवीजन हो जाएगा। एक इसमें प्रैक्टिस सेशन दूंगा जिसमें 2020 के, सॉरी 2022 के सारे जेई मेंस के एडवांस के जो भी इलेक्ट्रोस्टैटिक के पीवाईक्यूज हैं वो मैं निपटा डालूंगा, ठीक है? बिल्कुल सर। तो अब हम लोग का क्या असर है, हम लोग का क्या फोकस होना चाहिए कि इस लेक्चर को ध्यान से सुनना है। और बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स मैं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? पीडीएफ में दूंगा, प्रिंट मार देना, इसको एकदम साफ साफ प्रिंट आ जाएगा। और उसी को बस आपको क्या करना है सर, रीड करना है, ठीक है सर? और बार बार उन्हीं को आप पढ़ते रहिए बस, और कोई आपको काम नहीं करना सर, ठीक है? तो चलिए सर, चलते हैं और चल के मचाते हैं आज के लेक्चर में। बाकी इस लेक्चर को और डिटेल में पढ़ना है तो हम कभी आगे डिटेल में पढ़ लेंगे। फिलहाल अपनी जो हम लोग का टारगेट है उस पर हम लोग फोकस करते हैं। चलिए, बहुत सारा बातें हो गई, हम लोग चलते हैं सेशन में। तो सर इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल इलेक्ट्रोस्टैटिक का आप शुरुआत करल जाओ भाई। So let us start our topic electrostatic. Sir, what we are going to study in this topic? Sir, we are concerned about charge. The term for which we are more concerned, or which is more relatable to us, is charge. So sir, if we talk about charge, sir, if we read the first line of our note, then it is written, for a moving charge body, mass increases but charge remain constant. That means mass and charge are both independent of each other. That means there is no relation between charge and mass. Simple thing. And for non-relativistic particle, what is this non-relativistic particle? That means when V and C are not comparable, when V and C are not comparable, that means if V and C are comparable, then mass will be not defined. You can observe this thing very carefully. So if we talk about a non-relativistic particle, then charge Q upon M, this Q upon M, this is a very important point. Please, please note down carefully. This q upon m, this q upon m is called specific specific charge. And its pet name is, the pet symbol is E. We pronounce it as E equal to q by m, specific charge. So q upon m, therefore q upon m is constant, specific charge is constant. Now if we talk about what is this, this is a very see, if, as we all are droppers, or we are in class 12, we all have gone through this chapter very deeply, and we have gave our best effort on this chapter, so we know at least the basic of this chapter. That means we are on that level that we can understand what I am trying to say. Because if we will start with the scratch, then this chapter is not of 30 minutes, it is of 30 hour. You are understanding what I am saying? So if we talk about this, f equal to k q1 q2 upon r square. Sir, this is called Coulomb's law. What is called, sir? Coulomb's law. Sir, what is this Coulomb's law? A Coulomb's was a scientist which, and he was also very much, he has a very huge contribution to our physics. So if we talk about Coulomb, then Coulomb said F proportional to
And what is this K? K is Coulombian constant, Q1, Q2, and it is inversely proportional to R. What is R? If we take two charges Q1, Q2, then the distance between these two charges, he said R. So it is very very similar to gravitation. If we have studied gravitation in the, if we were very very focused toward our study, then we must learn that we have studied in past gravitation, and that is very very comparable, because in that chapter we study F equal to g m1 m2 upon r square. That means there also that gravitational force is inversely proportional to the distance between the two masses, and here also the electric force, electric force is inversely proportional to the distance between the charge. But we said for a moving charge, mass increases but charge remains constant. This is a very very important line, because if we try to frame a question with the mechanics, then if we move the body having some mass, then mass will increase but charge will remain constant. It will be a very very important line for the question that you should remember. If this line will strike on your mind, if this line comes in front of your eyes and that get strike to your mind, then you will definitely crack the question through this one line. So this line will be a brahmastra for your question. Okay sir, bilkul sir. Then, so be focused. Now if we talk about Coulomb's law, so this Coulomb's law is very clear. Now see, I will tell you one thing. This, what is K? Sir, this K is 1 upon 4 pi epsilon r, epsilon, only epsilon. Sir, why you are saying epsilon? Because in various books or in our coaching, we have studies 4 pi epsilon naught. Then I say, what is this epsilon naught? Sir, this epsilon naught is permittivity of space in vacuum. Okay sir. Sir, but when we change our medium, then we have to use epsilon. So epsilon equal to epsilon naught epsilon r. Okay sir. Okay sir. Epsilon equal to epsilon naught epsilon. Now a very very important thing, because if, listen, I will take a very very good example which will clear your concept very very thoroughly. Now just watch me what I am doing. See, I am erasing it because that concept has been stuck in your mind. I have stuck that in your mind. So now be focused. Be focused. I was saying, if I take this medium, okay, here is charge q1, q2, and it is some different medium. It is not vacuum. Okay, sir. Then a very very important point: the force, the force between two charges is independent of the medium. Listen, this this medium will change, will change the total force. This will change the total force, rather it will not affect the individual forces between two the charge. This is called the superposition principle, that the force between the two charges is independent of the third charge. The force between the two charges is independent of the third charge. That means it doesn't matter in which medium it has been put on. It doesn't matter. And this is a very very important and key point, because and why does it occur? This occur due to polarization. The charge create a polarization around it. So that is a very very deep concept. If we will study in SC Verma sir, it is given. So you have to remember epsilon. In some book, epsilon is also written as K, dielectric constant. Okay. What is this? I will recommend to learn it for speed solving. Speed solving. How? For equilibrium between the two charges. Wait. Let me give you a
quick way, I will give quick way. I was saying for equilibrium of the charges, if we are having two charges q1 q2 and this point is p where we have to find the equilibrium, then we say that this is x, total is r, so this is r minus x, I will say. So we can easily find, if we will put out here q naught charge, a unit positive charge, so we can easily find and we can compare equilibrium. That means both should be equal, but that is time taking. We should easily remember that root of charge, root q1 upon root q2 is x1 by x2. And what is this x1 and x2? This also should be in your mind, because you cannot take any one x1 and x2. So from wherever you are taking that distance, if you are taking q1, then from where you have to find the equilibrium, that distance will be x1, and other charge where you are from where you are finding, that will be x2. Have I made you clear? Now root q1 by root q2 equal to x1 by x2, root q1 by root q2 equal to x1 by x2, root q1 by root q2 equal to x1 by x2. This should be very very important, sir. Brahmastra, this is a Brahmastra for your physics. You should remember, sir, root q1 upon root q2 equal to x1 upon x2, root q1 upon root q2 equal to x1 upon x2. Okay, sir. Now a very very important point, which here it is written, for a regular polygon equal charges. See, if a figure is symmetric, let me add one page and I will made you clear this point. देखिए अब मैं आपको कैसे बताता हूँ. देखिए मैंने क्या कहा था, पीछे हम लोग ने पढ़ा अभी सर, कि सर इक्वल चार्जेस जब रखे होते हैं तो उसमें फोर्स नहीं लगता है. वो कैसे, जब देखो मैं बता रहा हूँ. जैसे यहाँ पे मैंने एक सर प्लस क्यू चार्ज रख दिया, यहाँ मैंने 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 प्लस क्यू चार्ज रख दिया सर. अब जो है यहाँ पर ये पॉइंट मैंने कहा सर ये क्या है, ये पॉइंट मैंने P बोल दिया. यहाँ पर हमें क्या करना है, फाइंड net force. We have to find net force at point P. Okay sir, we have to find net force. Now what we are going to do, we are going to put a unit positive charge at point P. Okay sir, and we know that q naught is very very small, that will not affect the force between the charge. So we put out the q naught and we try to find out our force on this. This is plus charge, this is plus charge. When this approaches here, this q naught approaches here, then this plus q said you are opposite, भाग जा. तो जब q naught आया तो प्लस q ने क्या कहा, भाग जा. तो ये पॉजिटिव पॉजिटिव भाग जा, और ये पॉजिटिव, तो इसने इधर कलर चेंज, इसने क्या किया, इसको भाग जा. ये इधर आया, इसने क्या कहा, इसको भाग जा. इसने इधर क्या किया, भाग जा. इसने इसको इधर भाग जा, इसने इसको भाग जा. तो ये कैंसिल, ये कैंसिल. ऑल पॉजिटिव आर गोइंग टू बी कैंसल, बिकॉज if I change a one single charge, either the magnitude or we are going to change the sign. Either I did plus 2q or I change minus. The question is going to change completely. The question is going to change completely. So be aware of the small thing in physics. Now I am going to give more examples. See, if I take here plus q and plus q, and I said please find the effective charge on this, then this plus q and plus q is going to repel it, and this plus q and this plus q is going to repel here. And I said equilateral, then this is 60 angle, so this is 60 angle, all magnitude are equal. So if we are getting 60 degree, then we know that if it is f, and if it is f, then this is come to f root 3. But if I talk about this point, then we'll get, what we'll get, see, now we would not get zero answer. Why? Because this is triangle. See, this plus q is going to repel here, this is going to repel here, this
Now every is 120 angle. Now the khela is begin. This is 120, this is 120, this is 120. If we take the resultant, if we take the resultant of this is f, this is f, then it will also come f, and this is also f, then this is going to be cancelled, then we are also going resultant 0. First we are not getting 0, but ultimately we are getting 0. Similarly, I am giving some homework, and this you are going to comment in the section, because my motive in this video is not to give a practice on your this session. This is a theory session, but I am giving a practice also. This is benefit to you. Plus 2q, this is plus 2q, minus 2q, 3q, and q. Find effective charge on this 2q. So I was giving homework. So this is 2q, this is 3q, and this is minus 2q. Find effective net charge at O. In every question you have to find net charge at center. Q, Q, minus Q, 2q, 3q, 2q, minus 2q, minus 3q. Please find the net charge at center and comment it. This will show your dedication completely. Now if we come to our next part of this chapter, we are giving a specific amount of time to every topic because time is limited. Okay, sir. Yes. Now if we talk about electric field, I have made such type of note because you can see my level of dedication which I have given to this chapter. I have made all the topic which can cover in your upcoming JEE mains and JEE advanced. Now see, I have told in presence of electric field, if we thrown a projectile, अगर अपन प्रोजेक्टाइल को फेंका भाई, प्रोजेक्टाइल को, तो प्रोजेक्टाइल को फेंका, तो प्रोजेक्टाइल को फेंका तो मैंने धरती माता का फोर्स भी लगा दिया, इलेक्ट्रिक माता का भी फोर्स लगा दिया, तो धरती माता का भी फोर्स लगा है, इलेक्ट्रिक माता का भी फोर्स लगा है। तो अब बताओ तो क्या करना है तुमको? अब तुमको टाइम पीरियड निकालना है, टाइम पीरियड निकालना है। तो कैसे निकाल, मैंने लिखा भी, बाकी करवा चौथ सेम है, बाकी करवा चौथ जो है सर, आप देखिए, बाकी करवा चौथ सेम है। खेल किसका है सर? जी इफेक्टिव का खेल है। अब क्या है, अब तुम्हारे पास क्या होगा सर? जी इफेक्टिव क्या हो जाएगा सर? भाई तुमने क्या, भाई इलेक्ट्रिक माता है ना, इसमें इलेक्ट्रिक माता, यहाँ मैग्नेटिक माता भी लगा दो, मैग्नेटिक। तो अब क्या हो जाएगा सर? क्यू ई बाई एम तो लग ही रहा है, साथ में मैग्नेटिक फील्ड भी लगा देंगे, मैग्नेटिक फील्ड भी लगा देंगे। भाई एफ इक्वल टू क्या पढ़ते हैं हम लोग? भाई ध्यान दो ना, अरे देते क्यों नहीं हो? एफ इक्वल टू एम ए इक्वल टू क्यू वी बी। तो बी इक्वल टू क्या हो जाएगा सर? एम ए तो जी इक्वल टू क्या आ जाएगा सर? क्यू वी बी बाई एम। तो यहाँ पर प्लस और आएगा सर, क्यू वी बी आई एम। तो सर ये तीनों ऐड करके तुम्हारा जी इफेक्टिव बनाएंगे, फिर उसको उठा करके तुम रखोगे, इसी में सर वो सारी तुम्हारी इक्वेशन को यूज करके क्वेश्चन बनाएगा। यानी कि जेई एडवांस के अंदर ऐसे ही क्वेश्चन बनते हैं, सारे कंसेप्ट को मिक्स करेगा वो और तुम्हें उसमें परखेगा। They will test your basic that you have to make strong, and that is the pillar of your foundation. अब देखिए यहां सर हम लोगों ने क्या किया सर? इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये क्या है? इलेक्ट्रॉन पे फोर्स। भाई वो तो सीधी सी बात है, इलेक्ट्रिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन जाएगा तो उस पर फोर्स अपोजिट लगेगा, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स अपोजिट, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज है उस पर फोर्स अपोजिट। बिल्कुल सही बात है सर। अब ये इंपॉर्टेंट आता है सर, और डेरिवेशन इसमें नहीं बताया जाएगा सर, डेरिवेशन के अलग से डेडिकेटेड वीडियो बना दिया जाएगा अगर आप लोग बोलेंगे कमेंट सेक्शन में, उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। बहुत बढ़िया। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फीयर। होता क्या है सर कि इसमें हम लोग के दो आते हैं कंपोनेंट, एक ई परपेंडिकुलर, एक ई फाइनल। ये याद होना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लैम्डा क्या है सर? ये चार्ज पर यूनिट लेंथ क्या है सर? ये क्यू बाई एल है, चार्ज पर यूनिट लेंथ है। इसी में खेल सकता है वो, अभी बताऊंगा कैसे खेलेगा। और ये अल्फा और बीटा ध्यान रखना कैसे होते हैं सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर। ये अपोजिट सेंस में होते हैं, अगर सेम सेंस में आ गए तो
तो अल्फा वाले को बड़ा एंगल लेना है, बीटा वाले को छोटा एंगल लेना है। इधर लिखा है साइड में, अल्फा बड़ा एंगल, बीटा छोटा एंगल। तो अल्फा को पॉजिटिव और बीटा को निगेटिव ले लेंगे। कब लेंगे अभी आगे केस आएगा तो बताएंगे, नहीं तो तब भी बताएंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। ई परपेंडिकुलर क्या है सर? जो तुम्हारी ये सीट ऑफ चार्ज है ना, ये सीट ऑफ चार्ज, इसके परपेंडिकुलर, सीट ऑफ चार्ज के परपेंडिकुलर जो है ना सर, ये के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और ई पैरेलल इसके जो पैरेलल है के लैम्डा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा। अच्छा ये सर आता कैसे, थोड़ा सा डेरिवेशन बता दूं सर। मैंने कहा हम लोग क्या करते हैं सर, यहाँ पर एक एक्स डिस्टेंस पे जाकर dx का एलिमेंट लेते हैं, फिर यहाँ पर सर हम लोग यहाँ पे ऐसे जाते हैं, ये रिपल करेगा इधर क्योंकि सर हमने क्यू नॉट चार्ज लिया है, सिमिलर फैशन में यहाँ लेते हैं, और फिर ये एंगल एक थीटा है तो ये थीटा, फिर यहाँ एंगल लेते हैं सर, तो फिर उसके बाद यहाँ से हम लोग कंपोनेंट निकाल के इंटीग्रेशन करके सर सॉल्व करते हैं। इसका अलग से वीडियो बनाएंगे, फील करा देंगे उसमें, बिल्कुल बहुत मजेदार, बहुत बढ़िया सर। सर मतलब परपेंडिकुलर कंपोनेंट के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा है, और पैरेलल वाला के लैम्डा बाई आर कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा हो रहा होगा। बिल्कुल चमक गया सर। कुछ लोग जो हैं, कुछ प्रजाति के लोग जो हैं, कुछ प्रजाति के लोग ये वाला एंगल लेते हैं सर, तो क्या होगा सर, ये क्या 90 है, ये अल्फा है, तो ये क्या हो जाएगा सर भाई 180 90 माइनस अल्फा, तो यानी कि तुम यहाँ पे 90 90 माइनस सब डाल दो तो वो थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। कुछ प्रजाति के लोग वो भी करते हैं, लेकिन उन प्रजातियों में हम नहीं आते हैं। हमारी प्रजाति अलग है, उनकी प्रजाति अलग है। हम लोग सिंपल तरीके चलते हैं, वो अलग तरीके से चलते हैं। चलने दो, धीरे चलने। ये देखो सर हमने डेरिवेशन भी बताया आपको, यहाँ पे सब कुछ है भाई, जो जो मांगोगे सब मिलेगा। अब इनफाइनाइट, इनफाइनाइट ऊपर देख रहे हैं, अरे देखे जा रहे हैं, अरे देखे जा रहे हैं, कहाँ गए, अरे कहाँ गए, अरे कहाँ गए, अरे दिख क्यों नहीं रहे, कहाँ गए, कहाँ गए, नहीं दिख रहा भाई, नहीं दिख रहा है। इनफाइनाइट चले गए ना, कहाँ से दिखेंगे। तो इनफाइनाइट वायर में क्या होगा भाई, यानी कि इनफाइनाइट यानी कि दोनों 90 चले गए, तो भाई साइन 90 तो 1 होता है। साइन तो भाई ये ऊपर वाला तो सर परपेंडिकुलर 2 के लैम्डा बाई आर हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा सर, 0 हो जाएगा, यानी कि ये मर जाएगा, ये मर जाएगा, सिर्फ ये बचेगा इनफाइनाइट के केस में। वो मर जाएगा, सिर्फ वो बचेगा इनफाइनाइट के केस में। हटा देता हूँ, नहीं छिचिया जाएगा, तो कहोगे क्या कर दिया सर, छिचिया दिया। तो सर ये बचेगा सिर्फ, तो 2 के लैम्डा बाई आर, और ये पैरेलल तो 0 हो जाएगा। अब सर ये रिंग वाला केस सर ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। रिंग वाला केस बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि रिंग वाले केस से क्वेश्चन आ रहे हैं सर, काफी आ रहे हैं। तो रिंग वाला केस ध्यान रख, तो रिंग वाला केस समझो सर, रिंग वाला केस क्या कहता है सर, ये रिंग वाला केस सर, ये रिंग कुछ इस प्रकार की होती है। तो हम लोग क्या करते हैं सर, ये सर कुछ भी मान लो, ये आर मान लेते हैं, तो सर ये एक्स डिस्टेंस पे जा करके वेट अ मिनट, सॉरी। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर सर एक एलिमेंट मान लेते हैं dx, फिर यहाँ से सर हम लोग यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ हमने मतलब यहाँ पे चार्ज क्यू क्यू था, तो यहाँ से हम ये इधर गया और ये इधर गया, रिपल करेगा, क्योंकि सर यहाँ चार्ज क्या था भाई, डी क्यू चार्ज मान लिया, यहाँ क्यू नॉट रखा, तो इसको रिपल करेगा, इसको रिपल करेगा, ये एंगल थीटा माना सर, तो ये वाला भी थीटा मान लेते हैं। तो होता क्या सर, ये दोनों कंपोनेंट तो भाई कट जाएंगे सीधे, यानी कि ये वाले बच जाते हैं, यानी कॉस थीटा वाले बचते हैं, यानी कि इंटीग्रेशन सर हम लोग डी ई कॉस थीटा कर देते हैं सर, और फिर यहाँ से सॉल्व करके लाते हैं हम लोग, फिर एंगल ले लेते हैं माइनस थीटा से प्लस थीटा, माइनस थीटा से प्लस थीटा एंगल ले लेते हैं। तो उसके बाद सर हम लोग सॉल्व करके लाते हैं, तो अपने पास जो आंसर आता है अल्टीमेटली वो आता है सर के क्यू एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर 3/2। ये बहुत इंपॉर्टेंट है सर, यस सर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सर ये। एक यहाँ पे सर एक चीज़ और आती है सर, इसका ग्राफ भी बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। अब ग्राफ कैसे देखो, जब तुम इसको डिफ्रेंशिएट करोगे ना, जब डिफ्रेंशिएट करके मैक्सिमा निकालोगे तो r/√2 मैक्सिमा आता है, ठीक है, r/√2 मैक्सिमा आता है। अब देखो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे। अब देखो एक चीज़ बताओ मुझे, जब तुम इस x को जीरो कर दोगे, जब तुम इस x को जीरो कर दोगे, ध्यान रखो, तो ये देखो कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ये क्या होगा, तब इसकी कुछ वैल्यू आएगी, ठीक है। अगर x को तुम बढ़ाते चले जाओगे तो ये तो कम हो जाएगा ना भाई, एक समय पे r/√2 पे कह रहा है मैक्सिमा आ रहा है, ठीक, यानी कि r/√2 पे मैक्सिमा आया। अब तुम इसको बढ़ाते चले जाओगे अगर x को इधर, तो इसकी वैल्यू तो ओवरऑल कम होती जाएगी ना,
कुछ ये ऐसे ग्राफ जाता है, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है सर, ये भी इंपॉर्टेंट है। बहुत आसानी से मैंने समझाया है, समझ में आया होगा। अब सर जो ये केस है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, ये केस भी इंपॉर्टेंट हो जाता है सर, आर्क वाला। क्योंकि सर आर्क वाला केस पूछा जा रहा है आजकल, ट्रेंडिंग में है सर। 2k λ/r साइन अल्फा बाई टू, 2k λ/r साइन अल्फा बाई टू, साइन थीटा बाई टू, कुछ भी बोलो भाई तुम्हारे ऊपर। देखो अब इसको केस समझो भाई, ये क्या है, इसको थीटा और इसको थीटा मान लो, ठीक है। अब हम लोग करते क्या है ये समझो, जैसे सर ये अपने पास होती है ना सीट, सीट, तो सर हम लोग एक हम लोग ऐसे खींचते हैं और इसको सर थीटा मानते हैं, इसको थीटा मानते हैं, और एक यहाँ पर एक एलिमेंट ऐसे लेते हैं सर, डी थीटा का एंगल लेते हैं। और उसके बाद सर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक, भाई देखो अपने पास क्या ये चार्ज है कुछ, तो डी क्यू चार्ज लेते हैं, और डी क्यू चार्ज लेते हैं तो ये ऐसे आता है, ये ऐसे आता है, तो ये वाले कैंसिल हो जाते हैं, फिर ये वाले सीधे बचते हैं। और फिर इंटीग्रेशन करते हैं हम लोग, और हम लोग के पास निकल के आता है 2k λ/r साइन अल्फा बाई टू, 2k λ/r साइन। अच्छा इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है सर, अल्फा चेंज करते जाओ। भाई अल्फा अगर मान लो हमको ये निकालना है, सेम ये क्या है, सेम स्क्वायर है मान लो, मतलब पाई एंगल, ठीक है। तो पाई डाल दो साइन पाई टू वन, 2k λ/r आ जाएगा, 2k λ/r आ जाएगा। अगर इस पे भाई पाई एंगल डाल दो, पाई जीरो हो जाएगा, तो ये भी तुम्हारा जीरो हो जाएगा। और अभी देखो, और वैसे भी तो देखो, जो सर्कल है ना, ये सर्कल सिमेट्रिक है ना, इसका तुम कोई भी चार्ज ले लो भाई, कोई भी चार्ज ले लो, ये हमेशा सेंटर पे जीरो ही आएगा, जो सुपर पोजिशन बताया था ना, प्रूव भी हो गया। अब अगर हम लोग बात करते हैं यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्क की वजह से, तो ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा। इनफाइनाइट डिस्क की बात करते हैं, तो जब 90 डाल दोगे तो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट, ये आगे पढ़ते हैं कैपेसिटर में हम लोग, लेकिन ये ध्यान रखो सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट वन माइनस कॉस थीटा इंपॉर्टेंट है, इसलिए बता रहा हूँ। अब ये क्या बता रहा है, ये कह रहा है सर नंबर ऑफ फील्ड लाइन ओरिजिनेटेड और टर्मिनेटिंग ऑन अ चार्ज इज प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। यानी कि क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि जितनी भी फील्ड लाइन तुम्हारी टर्मिनेट या ओरिजिनेट करती है चार्ज से, वो मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पे डिपेंड करती है। जैसे एग्जांपल भी दे रखा है मैंने कि सर ये तुम्हारा 2q चार्ज है, ये q चार्ज है, तो मैग्नीट्यूड की बात करते हो, जितनी ज्यादा मैग्नीट्यूड होगा उतनी ही ज्यादा फील्ड लाइन तुम्हारी ओरिजिनेट या फिर टर्मिनेट कर रही होंगी। और इस पे भैया बहुत ही भन्नाट क्वेश्चन बनाया जा सकता है मेंस एडवांस के अंदर। भाई वो तुम्हें चार्ज दे देगा, पूछेगा इसमें कौन कौन सी स्टेटमेंट सही है, तो अगर तुमको ये कंसेप्ट आता है तो तुम वो असर्शन रीजनिंग में नहीं फंसोगे। बढ़िया सर, बढ़िया सर, मजा आ रहा है। अगर मजा आ रहा है तो लाइक ठोको सर, मजा आ रहा है तो लाइक ठोको, मजा आ रहा है तो लाइक ठोको। अब देखिए सर, अब देखिए, अब ये क्या कह रहा है सर, अब ये कह रहा है फ्लक्स। फ्लक्स का बेसिक दिया आइडिया, क्योंकि इससे बहुत अच्छे अच्छे और डिफिकल्ट क्वेश्चन बनते हैं मैं मानता हूँ, तो इस पर अपन प्रैक्टिस करेंगे। ये बेसिक का कंसेप्ट देख लेते हैं, क्योंकि इसमें बहुत भाई मतलब बता नहीं सकता हूँ कितने अच्छे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इसका बेसिक अभी मैं यहाँ पे छोड़ रहा हूँ, इसको अपन क्या करेंगे, प्रैक्टिस के साथ करेंगे। अभी नहीं बताऊंगा, मजा नहीं आएगा, प्रैक्टिस के साथ, प्रैक्टिस के साथ करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें जो मैं प्रैक्टिस के साथ बताऊंगा। तो आज के सेशन को सर यहीं पे एंड करते हैं, और मिलेंगे सर इसी के साथ, इसी उम्मीद के साथ, इसी जोश के साथ, और इसी सोच के साथ कि आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, और शेयर करेंगे अपने मित्रों तक जो कि मेरे चैनल से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उनको इतना करना चाहिए सर। तो मिलते हैं, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। और अपने करियर में सर मचाते रहिए, और अपने ऊपर भरोसा रखिए कि यू कैन डू इट, यू विल डू इट, एंड यू विल डेफिनेटली डू इट। तो मिलेंगे अगले लेक्चर में, तब तक के लिए सी यू, टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल। और इसका नेक्स्ट पार्ट जो है सर, वो क्वेश्चन सेशन का जल्द ही आ रहा होगा। और जैसा कि आप लोग मेरे से बोल रहे थे कमेंट में कि सर बहुत ही जल्दी बोर्ड वालों के लिए कुछ ले करके आइए, तो बिल्कुल सर, बोर्ड वालों की केमिस्ट्री का पूरा जिम्मेदार मैं रहूँगा, पूरा अपने कंधों पे मैं लेकर चलूंगा कि सर बोर्ड में उनको 100 में 100 केमिस्ट्री में मैं दिला दूंगा। उसकी आप निश्चिंत रहिए, सीबीएसई आईएससी जो भी बोर्ड है आपका, फलाना ठिकाना, सबकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। बस आप लोग बने रहिए इस चैनल के साथ, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।